Assalamu alaikum. Good morning. My name is Rashid Khan. I'm the Marketing Communications Manager at ACCA. Thank you very much for joining us for the third part of our Journey to Success webinar series delivered under our Gear Up initiative, in which we try to develop key employability skills among our affiliates and students. But before we begin the session, just a little sound check. If you can let me know if you can hear me all right in the comment section. If you can please send us yes or no. I'm waiting for your responses. Yes, yes. Okay, perfect. So all of you can hear me. Thank you very much. Today we are again joined by Asad Mahmood Malik, who will be delivering a very informative and very useful session for you all. Thank you very much, Asad, for your kind presence, as well as Mohammed Shahid Khan, who will be moderating the session. He's the business development executive. He has joined us from Peshawar, and Asad is also in Peshawar today. So both of the gentlemen are in Peshawar, the city of flowers, I guess. So thank you very much, both of you. Now I hand over mic to Asad to officially begin the session. Over to you, Asad. Thank you very much. Assalamu alaikum. Very warm welcome to all of the dear affiliates, students, and ACCA fraternity. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. And today we are at the third session of the series of Journey to Success. And today we are going to talk about a very important aspect which plays a very vital role in your success, in your professional success, and your ultimate success in your life, and that is your personality. So today we'll be talking about personality. And here we have in front of you written, dress up your aim, personality development. Let's put some light on this. आप कहीं पर भी, जब कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, किसी के साथ किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होते हैं, प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर रहे होते हैं, नॉर्मल किसी नेटवर्किंग पे होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो. आप किसी वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, wherever you are and you are interacting or in front of the world or in front of the people you are presenting yourself, और जब इंटरव्यू रूम के अंदर जैसे ही आप दरवाजे से एंटर होते हैं और जैसे ही आपकी पर पहली झलक पड़ती है, so it all starts about your personality from the very that time. And it's very important that even if you are not there physically, and I have something which is written, जो कि आपके हाथ की लिखी हुई कुछ लिखाई राइटिंग मेरे पास है, in form of a letter, in form of any statement, or in form of even CV or resume. इसमें से कुछ भी अगर मेरे सामने है आपका, और मैं आपसे इससे पहले कभी मिला नहीं हूँ, even looking at that letter, even by looking at that CV, cover letter, कुछ भी है, even उसको देखकर भी मैं आपके बारे में एक परसेप्शन बनाऊंगा कि ओके, by looking at this resume, ये ऐसा दिखता होगा, ये इतना फोकस्ड होगा, ये इतना स्ट्रांगली परस्यू करने वाला होगा, इसका ये कोर इंटरेस्ट लग रहे हैं, ये बहुत कैजुअल होगा. सो इवन यू हैवंट मेट दैट पर्सन, अभी आप उस शख्स से मिले नहीं हैं, और by looking at your CV or resume, one is actually having a perception around your personality. So personality covers all of your aspects. From your toe to head, your thought process, your aim, your passion, your vision, your thinking process around the opportunities, whatsoever reflects you from your thought process to your complete existence talks about your personality. And so this is the reason it's not one color, it's the complete you yourself with all of your colors,
about all of your aspects of your life, whether personal, whether professional, whether religious, whether it's about anything, even about sports. It's if that thing is about you, then that thing talks about your personality. So personality is very important. So the most important part will be this, starting from the very first day. If you see, if the pattern uh, in the slide in front of you, that it's a ladder process. So few things are very core and very basic, and gives you the foundation to your personality and are very important to understand actually. So we'll go first of all there. So the most important is actually, maybe you must be thinking something, the communication skills, maybe your maybe your voice tone, maybe your qualification, maybe your technical skills in your personality. No, but before all these things, there is one important, very important ingredient feature of personality, which is the most important, and that is the first impression. Because first impression lasts. If you see in the picture, the same person is wearing a proper dress shoes, under the dress pants black, and on the other दूसरे feet पे he is wearing a casual, उसने sneakers पहने हुए। ये क्या बता रहा है हमें? हमें ये बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि यही सिचुएशन में इफ यू आर कमिंग इनटू द इंटरव्यू with these blue sneakers into the interview, and now the जो interviewee है, and he is now starting looking at you, he has started looking at you, and now there is a first impression about you. Okay, the person is going to, is casual, and he doesn't look that much disciplined, and he is not here by being relevant. So there is a culture to every place you visit. When you visit to your workplace, there is a different culture. When you are at home, it's a different culture. When you are out sitting at some cafe and you maybe you're wearing these sneakers with jeans, or the way you are carrying them, it actually completely depends. But first impression, and where are you bringing that impression, with what and how relevant you are, this is very important. So personality का जो सबसे important part है, that is how you actually bring on the first impression. Okay, we as we said, dress up your aim. Usually we use this word dress up for dressing up ourselves. हम कहीं पर भी जा रहे होते हैं, कोई भी इवेंट, सेरेमनी, कोई सेशन अटेंड करने, चाहे वो फॉर्मल है, कैजुअल है, आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, कोई किसी फ्रेंड की बारात, रिसेप्शन, मेहंदी अटेंड करने जा रहे हैं, सब केसेस के अंदर यू ड्रेस अप योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. But the most important part is कि beyond dressing yourself with your wardrobes, it's very important also that you dress up your mindset. For example, let's suppose कि you are going for your friend's reception, who doesn't live in a city and he lives in a village, and you live, for example, in a some metropolitan city, और यूजली जब आप सिटी के अंदर किसी भी फ्रेंड की रिसेप्शन पे जाते हैं या रिलेटिव्स की, तो यू वेयर प्रॉपर ड्रेस पैंट, शर्ट, प्रॉपर जैकेट ऑन विद द टाई. बट आप जब विलेज में जाते हैं तो आप इसी सेम ड्रेस कोड के साथ वहां चले जाते हैं. जब आप वहां जाते हैं तो आपको वहां जाकर ये पता चलता है कि उस पूरी सेरेमनी के अंदर शायद 100 में से आप ही ऐसे हैं जो ये ड्रेस कोड पहन कर आए हैं. Which means कि by theme
by thought process of village, वहाँ के लोगों का फिर again, if you are going to Mehndi function, so Mehndi function is more of a casual function. So if you go there with the proper dress code and tie, again, you will be stand out, odd, or irrelevant. Likewise, when you go for interviews, so apart from your dressing, it's very important to understand the background, the subject, and where you are going. For example, if you are going for any particular interview, so apart from reading the job description and the dress code you are wearing, it's very important to jump into the culture and the mindset of that organization and dress up accordingly your mindset. For example, go on their website, read about the values, the vision, the mission, and the culture. You will get an idea about the culture of that organization. You go on their social media sites, you go on the LinkedIn, and also see the person who is going to conduct your interview. Also see and read his personality as well. So whenever you're actually appearing for that particular interview, so you dress up your mindset accordingly. Likewise, if you are actually presenting or you are planning to become an entrepreneur, so to have a right mindset in front of investor, आपके पास एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है और आप उसको इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, एंड व्हेन यू आर देयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इन्वेस्टर के माइंडसेट को अंडरस्टैंड एनालाइज करने के बाद you dress up your mindset accordingly. So you always dress up yourselves as per situations, also your mindset. And this is the very important ingredient after the first impression part, जब हमने first impression की बात की, and the most core is the mindset, कि आप अपने mindset को किस तरह से मुख्तलिफ situations के अंदर accordingly dress up करते हैं. Okay, if we look at the picture, it's a moon, और जो लाइट है वो बड़ी खूबसूरती से रात के वक्त किसी लेक पर या किसी ओशन में या पानी के ऊपर खूबसूरती से रिफ्लेक्ट हो रही है. सॉरी. ओके, सो इट्स बेसिकली मून्स सेल्फ रिफ्लेक्शन जो यहाँ से क्रिएट हो रही है. लाइकवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज इज जिसको जिसको हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कहते हैं. हमारा हमने पिछले सेशंस के अंदर बहुत ज्यादा बात की कि अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए वो क्या थॉट प्रोसेस है जो जिसके साथ हमें अपने आप को वेल इक्विप्ड करना चाहिए. हमने विजन की बात की और उसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जो बहुत क्लोज थी सेल्फ रिफ्लेक्शन के, यानी कि योर सेल्फ, you need to know yourself, you need to sell yourself. So it's about now reflecting yourself. How better you reflect yourself, for example, uh, you are very knowledgeable, you are very technically strong. आप जिस सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली अपने करियर में, आप उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, बड़े पैशनेट हैं, और यू वर अ टॉप परफॉर्मर, you were a nationwide position holder or worldwide position holder, and you know few best areas. So this is all with you, but the art is how beautifully and smartly you reflect all these parts. One of the very finest intellectual from the history says, the beauty you see in me is a reflection of you. So whenever you see the people around you, during the networking sessions, जब आप कहीं पर networking में होते हैं, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो, या आप किसी प्रोफेशनल networking sessions में या conference attend कर रहे हो, तो इर्द गिर्द के लोगों का जो response आपको आता है, आपकी आपकी गुफ्तगू के दौरान आप जब बात कर रहे होते हैं, और जो वो बिहेवियर आपके साथ परस्यू कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर कॉन्वर्सेशन और स्टेटमेंट्स, इज एक्चुअली यू योरसेल्फ ड्राइविंग दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या, कौन से पॉइंटर्स, क्या थॉट प्रोसेस की अपनी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो वो आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं.
और उसको आप जितना अच्छा रखेंगे, जितना खूबसूरत रखेंगे, उतना ही वो खूबसूरती से रिफ्लेक्ट बैक होता है। इंटरव्यूज के अंदर खास तौर पे एक कॉन्सेप्ट होता है, इस यूज होता है जिसको कहते हैं द फॉर्मेट, जिसके अंदर जो इंटरव्यू देने वाला है वो लीड करता है, यानी कि यू योरसेल्फ आर देयर फॉर इंटरव्यू एंड यू आर एक्चुअली लीडिंग दैट इंटरव्यू सेशन योरसेल्फ. So you are actually driving that. You are taking the person in front of you who is taking your interview and you are leading that. So how it becomes possible? When you are strong at self reflection. Okay. If you see हमारे सामने ये चेस की गेम की एग्जांपल है और इसमें डिफरेंट प्लेयर्स हैं उसके विथ ऑलमोस्ट ऑफ द इक्वल साइज, एक साइज के पोस्चर के, बाय कैपेसिटी, बाय द लुक है, लेकिन एक का शैडो जो है वो ग्रो कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी पर्सनालिटीज में एक बहुत अल्लाह ताला की तरफ से, फ्रॉम द क्रिएटर, एक बड़ी बिल्ट इन एक इंग्रेडिएंट है जिसको हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कितने हम में से लोग हैं जो अपने अंदर की इस बिल्ट इन क्वालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं और पॉलिश करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने अक्सर देखा होगा, इट्स वेरी, इसका एक बड़ा बेसिक फाउंडेशन पे जाते हैं, और वो ये है कि वो लोग जो किसी भी काम के अंदर आगे बढ़कर लीड ले लेते हैं. इसका जरूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक सिर्फ पर्टिकुलरली जब आप काम कर रहे होते हैं या सिर्फ टीम्स में होते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी जब आप लीड करते हैं. उसके अलावा ये बड़ी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है. मिसाल के तौर पे आप घर से जा रहे थे और आपने देखा कि मे बी समवेयर, जहाँ ट्रैक, जहाँ आप वॉक करने जाते हैं किसी भी पार्क में या कहीं पर भी, वहां पर ट्रैक के बीच में एक ब्रिक पड़ी हुई है. सो कोई उसको नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा. यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, यू टेक दैट लीड, और आप जाकर वो ब्रिक उठाकर लोगों का रास्ता क्लियर करते हैं. आप समझते हैं कि आप कहीं पर भी हैं और एक चीज अनडन पड़ी हुई है, अनडन पड़ी हुई है, और यू आर द फर्स्ट पर्सन टू टेक दैट स्टेप, और आप वो स्टेप लेते हैं. तो जितना भी जो जो अच्छा चेंज होता है, या जिस जिस हम चेंज की बात करते हैं आने वाले वक्त के अंदर, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, और हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को किस तरह से एक अच्छे तरीके से चेंज करना चाहिए, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो है लीडरशिप रोल. और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ यू सी द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, very fast pace. For example, if you go back 8 to 10 years, the technology आज से 5 से 6 साल पहले जो थी, अब completely it's been improved up to more than, मतलब कि आप बात कर लें कि आप 4 times, 8 times more faster, more innovative. For example, if we, even we talk about cell phones, if you go 10 to 12 years back, we used to have the brick size cell phones with us. And in the last 10, 12 years, amazingly, we have very smart phones, very light based phones. Likewise, is the environment around us is changing. So in that particular environment, it's very important कि हम उन सारे changes के अंदर importantly, जहाँ जहाँ situation based important है, we should be a part of that change by bringing alive this leadership quality among ourselves. Okay. Very important part of our personalities. जब हम बात करते हैं कहते हैं कि जी किसी भी यार इसके इसकी बड़ी खूब जबरदस्त शख्सियत है इस शख्स की, इसके ये जिस तरीके से गुफ्तगू करता है और जिस तरीके से बातचीत को, अपनी बात को कम्युनिकेट करता है, यार इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं. ये अ, बड़ा स्ट्रांगली अपना पॉइंट को पुट करता है प्रॉपरली विद द रीजंस, और ये कंफ्यूज नहीं लगता है. जब वो बात कर रहा होता है तो वो बड़ा स्ट्रांग लग रहा होता है. बड़ी जबरदस्त शख्सियत है. जब वो देखो वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी, कोई भी टीवी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन,
वो बड़े मुस्बत अंदाज के साथ अपना बयान प्रेजेंट करता है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी हैं। आपकी फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक सेशन डिलीवर कर रहे हैं, एंड देयर विल बी अ टाइम इन योर लाइव्स आगे चलकर जहां वे there will be a crowd in front of you, 50 people sitting in front of you, 100 people sitting in front of you, and you are delivering some session या कोई talk deliver कर रहे हैं आप या कुछ भी, और वहां पर आप खड़े होकर एक पैटर्न यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का, जिसमें आप लोगों को बेसिकली गाइड करना चाह रहे हैं कि आपने इस हॉल से या इस क्लासरूम से निकलकर बाहर हॉल में कैसे इकट्ठे होना है। सो राइट नाउ फॉर लेट्स सपोज कि हमारे सामने 50 लोग बैठे हुए हैं, और अब मैं या कोई भी शख्स जो सामने खड़ा हुआ है वो अब एक्सप्लेन करने लगा है कि हॉल में कैसे जाना है। तो आप कहते हैं जी आप सब एक काम करें कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और ये दो डोर्स हैं, या हाफ लोग जो हैं यहाँ से चले जाएं और हाफ लोग यहाँ से चले। अब क्या है, लोग आपकी हैंड मूवमेंट को देख रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं जब आप ऐसे कर रहे हैं। सो यू जो स्टेयरिंग है गाड़ी का वो आपके हाथ में है, और अब आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूज कर रहे हैं अपनी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू। सो क्या इंप्रेशन जा रहा है आपके बारे में कि ही हिमसेल्फ इज नॉट क्लियर, कंफ्यूज्ड, जिस तरीके से जो बात वो प्रेजेंट करना चाह रहा है आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज आपस में सिंक नहीं है। सो इट मस्ट बी वेरी गुड इफ ही ब्रिंग्स दैट, जो थॉट प्रोसेस को यहाँ पर क्लियर है कि कहाँ जाना है, वो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी लेकर आए। लाइक वाइज फॉर एग्जांपल कि ये दो डोर हैं, एक आपकी लेफ्ट साइड पर, एक आपकी राइट साइड पर, आप सबने ऐसे गैदर होना है, और यहाँ से आप लोग बाहर जाकर हॉल में मेरा वेट करेंगे। सो आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस टोन, द वे यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग, अगर आप यूं खड़े हुए हैं, एक आपका शोल्डर गिरा हुआ है और आप उसको यूं यूं कर रहे हैं, सो इट शोज दैट how much actually you are focused and disciplined and interested in the conversation. So maybe it's something very light and casual, but if that is something very important and you are at very important forum, so your posture, your eye contact, your voice tone, and your hand movement, keeping all together, putting all together of them, all of them together, sorry, in a very firm way is very important. So when you do that, so you realize that the body language in your personality is actually the superpower. अगर आप सारे फैक्टर्स को, इंग्रेडिएंट्स को, जो हम आगे भी चलकर डिस्कस करेंगे, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको आपकी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है, एंड दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। सो योर बॉडी लैंग्वेज is very important and is the superpower. Okay, so the most हमने अब तक बात की है, तो उसके इसी बॉडी लैंग्वेज के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने अभी बात की है इज एक्चुअली, हमने वॉइस टोन की बात की है, हैंड मूवमेंट्स की बात की है, पोस्चर की बात की है जब हम खड़े हैं, इट इट रिप्रेजेंट्स आवर पर्सनालिटी वेरी फाइनेस्ट वे। बट इस सब के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर आई कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ वेरी गुड ड्राइवर, आप उस क्लासरूम को स्टेयर कर रहे हैं, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, ठीक है, आपका पोस्चर करेक्ट है, आपकी वॉइस टोन करेक्ट है, आपकी हैंड मूवमेंट करेक्ट है, बट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी गाड़ी की विंडो स्क्रीन जिसको आप किसी हाईवे पे या मोटरवे पे जब ड्राइव कर रहे हो और उसके ऊपर विंड स्क्रीन के ऊपर एकदम से कोई चीज आकर लगे एंड यू लूज द साइट, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट ऐसा होगा कि आप को नहीं पता कि मे बी वो डेडली हो, आपकी जान ले जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि
आई कांटेक्ट आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को एक्चुअली इम्पोर्टेंटली नेविगेट कर रहा होता है, और इट्स एक्चुअली जिस तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस होता है किसी चीज का, सो इट्स कोर टू योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कांटेक्ट। मिसाल के तौर पे अगेन द सेम सेशन और द क्लासरूम, यू आर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और you are talking and you are looking here and there, and then you are looking at your phone, and your eyeballs are completely shaking. Suddenly you start looking down, then again here, then here, you know. So मिसाल के तौर पर अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सो मेरा जो आई कांटेक्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब मेरी हैंड मूवमेंट और मेरी आई कांटेक्ट और मेरी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर अभी सिंक है जब मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करते करते और मैं बात कर रहा हूँ और मैं इसी तरह बात करूँ और यूं ही आपसे बात करते करते देखूं, सो यू विल ऑल्सो फील डिस्ट्रैक्टेड, डिस्टर्ब्ड कि व्हाट ही इज डूइंग ऑन द वेबिनार, इज ही टॉकिंग टू अस, और क्या ये इंप्रेशन दे रहा है कि क्या हम लेस इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज है, इसके पास नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। लाइकवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके बारे में एक फीडबैक देता है आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी के आउटकम्स के ऊपर, एंड दैट इज जब आप इंटरव्यूज में होते हैं और जब आप इंटरव्यूज के अंदर अपना जो आई कांटेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी कॉन्वर्सेशंस। ओके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात समझना कि बहुत से लोग एक चीज को कंफ्यूज कर देते हैं, और वो ये है कि जब आप एक आई कांटेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस आई कांटेक्ट के अंदर भी डिफरेंट इंप्रेशंस हैं जो आप आई कांटेक्ट की टोन से देते हैं। जिस तरह से मेरी आवाज की एक टोन है जिसमें अब मैं अगर इसको बिल्कुल धीमे ले जाऊं तो बिल्कुल धीमे ले जाऊं तो इट टर्न्स डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर रेडियो सुनते हैं गाड़ी पे, जो मॉर्निंग का जो रेडियो जॉकी होता है जो मॉर्निंग में रेडियो प्रोग्राम्स करता है, उसकी वॉइस टोन में एक्साइटमेंट होती है, वो बड़ी इंस्पायरिंग होती है, स्टार्ट ऑफ द डे होता है। फिर इवनिंग में टोन जो है थोड़ी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा एवरग्रीन फॉर्मेट होता है जिसमें सॉन्ग्स भी चलते हैं, तो वो अपनी आवाज की टोन को उस हिसाब से चेंज करते हैं। इसी तरह से आप अपने आई कांटेक्ट को कितना कहाँ पे फर्म रखना है, कितना उसको नॉर्मलाइज करना है, सो दैट आल्सो टोन दिस आई कांटेक्ट को, क्या जो आपने जो उसको जो उसका पोस्चर आई कांटेक्ट पोस्चर है उसको भी आपने डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंटली यूज करना होता है। with a smile on your face, with a hard look, it gives a different message. So it actually depends on the scenario, but most important ये है इसमें बात समझने वाली कि when you are at important forums और आप जब कोई एक مثبت बात कर रहे हैं, so your eye contact should be very strong. Okay. What makes को एक बहुत important part है हमारी personalities का, जो खास तौर पे एक ingredient है जो खास तौर पे कामयाब लोगों में बहुत होता है, और वो होता है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म के रीडर्स होते हैं, रीडिंग पे बिलीव करते हैं। Pick any big names around you, any big names who are very fine intellectuals, opinion makers, public figures, leaders, very fine politicians from the history, or you'll see one common one common habit in them is कि वो रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, किताबों के साथ उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और जब आप एक्चुअली किताबें पढ़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो है एक बहुत खूबसूरत तरीके से निखर के सामने आती है। आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है। आप एक बात को कम्युनिकेट करने के लिए आपके बैक एंड पे जो आपके पास लाइब्रेरी होती है अल्फाज की, वो बहुत वसी हो जाती है। आपके पास जो मीनिंगफुल वर्ड्स का, इम्पैक्टफुल वर्ड्स का जो जखीरा है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है। और आज के दौर में खास तौर पे, वेयर वी आर इन द न्यू नॉर्मल, with the digital
इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ जहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन के अंदर वोकैबलरी, हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को किन अल्फाज के जरिए प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल तब हो पाता है जब आप अपनी सब्जेक्ट बुक्स के अलावा, बीइंग अ स्टूडेंट और व्हेन यू बिकम एन एफिलिएट और फॉर द लाइफ टाइम, यू कीप बुक्स विद यू, सो यू कीप ऑन लर्निंग, और आपको खुद भी नहीं महसूस होगा, there will you will start seeing very good strong positive changes in your personality. आज के दौर में if you see the person in the picture, एक बड़ा खूबसूरत हॉर्स स्कल्पचर बना रहे हैं, और बाल, हाथ, उन कपड़े इस शख्स के बिल्कुल उसके अंदर, he is completely involved, he is completely indulged into the subject, he is actually जो वो कर रहे हैं उसमें completely indulged है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में समझना कि whenever we are out to pursue anything, any particular mission, any particular objective, task, और कुछ भी हम कर रहे होते हैं, टीम्स के अंदर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं, कुछ भी होते हैं, सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारी पर्सनालिटी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ मच फोकस्ड वी आर। यूजली आपने ये बहुत ज्यादा देखा होगा कि जनरल कॉन्वर्सेशंस के अंदर भी, नॉर्मल नेटवर्किंग के अंदर भी, जब आप 4 लोग या 6 लोग कहीं पर खड़े होकर कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जब कोई आपको हम कलाम करके या आपको डायरेक्ट करके, आपको एड्रेस करके आपसे बात कर रहा होता है, और आप थोड़ी थोड़ी देर बाद सेल फोन देख रहे होते हैं, आपका जहन 10 और जगहों पर भी होता है, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा जहन एट टाइम 10 जगहों पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके द फेसबुक, ओके इंस्टाग्राम, ओके मैंने वो काम करना था, ये करना था। It's good to keep yourself responsible, but when you are into something and pursuing, it's very important कि आप अपनी सारी attention, focus, और you bring yourself all together and focus there. और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ड्यूरिंग इवन जो मैंने बात की कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कोई आपसे हम कलाम होता है, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाउ गुड लिसनर यू आर, हाउ बेस्ट you bring in the focus to the conversation. तो focus बहुत important है, so that you don't go irrelevant, you don't put your impression in a way that maybe you are a bit casual, especially in the interviews, especially during the presentations, especially during working in the projects. So focus is very important. This is very close to my heart. I can share with you number of examples who believe that by having a fair complexion, by having a tall height, means good personality. अगर आप गुड लुकिंग हैं, आप खूबसूरत हैं, आप तो तब ही आप एक मुस्बत पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हकदार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई नो नंबर ऑफ पीपल जिनका कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं है, जो बिल्कुल टॉल नहीं है, ठीक है, जिनका पोस्चर भी इट्स फाइन, शायद अपनी पूरी लाइफ में जिम भी नहीं गए, और उसके अलावा अगर जिम गए भी हैं तो इवन बाय बिल्ट इन उस तरीके से उनका इंप्रेशन नहीं है जिस तरह से एक टॉल फेयर, और लोग जिस तरह से देखते हैं, और लोग बिल्कुल इस चीज पर यकीन कर लेते हैं कि ओके ही और शी इज गोइंग टू टेक completely competitive edge on me in this perspective. This is wrong. हमने जब सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की, फोकस की बात की, बॉडी लैंग्वेज की बात की, ये सारे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेयर कॉम्प्लेक्शन, आपके टॉल होने से, आपके फिजिकल पोस्चर से, आपकी फिजिकलिटी से काफी बढ़कर हैं।
और आप ज्यादा इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं जहां पर ज्यादा बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको इनेबल किया जा सकता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग in all of these ingredients is confidence. How strongly you believe in yourself. हमने पिछले कुछ सेशंस के अंदर बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत बात की थी, स्पेशली जब हम विजन की बात कर रहे थे, और उसके अंदर एक देयर वाज अ स्लाइड जहां पर हमने ये बात की थी that you start seeing your empire up at the hill when the rocks are there. आप अपना वो शहर वहां देखना स्टार्ट कर देते हैं जब किसी को वहां कुछ नजर नहीं आ रहा होता। और इस बिलीफ सिस्टम को जब आप ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रांगली, तो ये कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है। और वो कौन सी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, विच इज दैट यू मस्ट बिलीव with confidence that you are powerful, you can create a strong impact. You need to believe in this part of yourself, and this the brilliant part, the brilliant side of yours personality, and also the brave at the same time. For me, these three ingredients within confidence, if you start believing in yourself with these three ingredients, gives you a very strong confidence. Okay, we have two pictures in front of us. If you see the picture in the left, बिल्कुल एक बंजर जमीन है, और जो बिल्कुल किसी का तरह का कोई चांस नहीं है उसके ऊपर के कुछ भी हरियाली या कुछ भी आए। लेकिन उसमें आप देखें एक जो एक छोटा सा एक ग्रीन प्लांट जो है उसमें से निकल रहा है, उस बंजर जमीन के ऊपर जहां पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और वहां पर भी इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और लाइकवाइज ऑन द पिक्चर on your left, if you see the size of the rock and the size of that person, so it gives a very important message here कि हम अपनी personality के different ingredients को बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इन सब को बड़ा passionately drive करना होता है अपने आप को, इन ingredients को confidence के साथ आप एक drive करते हैं with some persistency. You keep on doing, you keep on putting your best into the work, and there comes a time, there is जितनी भी चीजें हमने बात की हैं, they are not going to come in your personality at their very best shape on the very first day. Maybe not even on the second day, maybe not even on the third day, maybe even not in a month, maybe not even in a year, but there is a decided time for that when it's going to come to you. And when it comes to you, then from there actually everything starts changing for you, and that's the beginning. Okay, another important part of the personality is how we actually respond to the difficult situations, how actually you are responding to the difficult situations around you. This is very important, and it defines what your response to the different situations defines. There's a picture in front of you. We used this picture in our last session as well, where we talked about the vision and the link and the relationship of eagles and the leadership. It's very important to understand, and how the way you respond to the difficult situations or any situation actually talks about your attitude, your behavior, the way you see things, how much positive, how much negative, completely depends on how actually you respond to the situations, and how with how much optimism actually. So it represents your attitude. हम बहुत इस पे बात करते हैं यूजली अपनी कैजुअल कॉन्वर्सेशंस के अंदर भी, दोस्तों यारों के साथ, when sitting in a cafe or a canteen, or when having light conversations, or even when having very serious conversations, this word attitude is used a lot. कि इस शख्स के
या उस पर्टिकुलर शख्स के साथ के में एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं, या हम बिल्कुल इसके वाइस वर्सा बात करते हैं कि इस शख्स का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसका शख्स का एटीट्यूड जिंदगी की तरफ बहुत अच्छा है, इस शख्स का एटीट्यूड अपने काम की तरफ बहुत अच्छा है, इस शख्स का एटीट्यूड अपनी जॉब अपनी स्टडीज की तरफ बहुत अच्छा है। सो आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, that is actually your attitude. And the best example comes out from basically the eagles. That eagle avoids rain by flying above the clouds. So when the difficult situations are there, when the pressure is there on you, the thunder is there, the storms are there, the rain is there, so you decide actually not to have actually a fight, or you put yourself into all the negativity, but you actually intend to fly above those all storms. For example, so you go above the clouds. So that sort of attitude is required in good personalities. Okay, so when you have the right attitude and confidence and the persistence with you, then this all changes into a very strong faith, because without faith we are nothing. जो बिलीफ सिस्टम, जो थॉट प्रोसेस, जो डिवाइन पावर्स, जो अपने ऊपर अपने आप पर जो बिलीव करते हैं, दैट ऑल टुगेदर ब्रिंग्स अस टू आवर फेथ। और हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें, if there is no faith, then it will lead us to nowhere. The person without faith is considered to be even visionless. So faith is the very important part. And when you have faith, then start believing that mountains do move. Even आप बड़े से बड़े पीक्स को हिला सकते हैं अपने पैशन और अपनी एनर्जी से और अपने फेथ से। विद द राइट एटीट्यूड इन योर पर्सनालिटी, you can do anything in this world and can change this world into the more good, more better place, and contribute in a very good sense to this world. Okay, let's talk about some signs that you may have a strong personality. Okay, so is a picture in front of us, very the picture with a lot of good composure, strong impression, confidence. So the first point, the first sign in the strong personalities, that you are always true to your values. In the last session, we talked about the value systems, that how actually the values play a very important role even in the organizations and even with our own selves. जब हम अपनी बात करते हैं तो कदरें कितनी important है. So your values define you, how selfless you are, how passionate you are, how dedicated you are, how much strongly you believe in you, the accountability part, how you take the integrity in your lives. These all reflect your values, कि आप अपनी values पर कितना strongly believe करते हैं, या सिर्फ आप उनको सिर्फ कहते हैं लेकिन वो आपकी body language में, आपके thought process में, आपके actions में reflect नहीं करती है. The other important sign is that strong personalities stay calm under pressure. Pressured situations के अंदर रिएक्ट नहीं करते हैं, नेगेटिव जोन में नहीं चले जाते हैं, पॉजिटिविटी को लूज नहीं कर देते हैं, अपनी ग्रिप ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के ऊपर लूज नहीं कर देते हैं, और बड़ी पिक्चर को लूज नहीं कर देते हैं. सो यू डोंट लूज इन द मिडल ऑफ द स्टोरी just because of the pressure that is there in front of you for the temporary time period. Third important point is that you always lead by reasons and not by emotions. So strong personalities की जो emotional quotient होता है, या जो emotionally जो stability होती है, वो बहुत बेहतर और अच्छी होती है.
You don't like ignorance and insensitivity. This is very important. You're very well informed and thoughtful. Strong personalities are very well informed. This is very important part here. For example, again, I'll give you example of the interviews or when you are having very good, important discussions, very subjective discussions, even with your line manager, with your boss, with your team leader. So this is very important कि जब वो conversations हो रही हों, how much well informed and thoughtful you are. So, and you actually reflect on this part. And most important part of the strong personalities are okay, they are fearless, brave, strong, and they believe in themselves, and they are risk takers, especially if you are out to become an entrepreneur and being a thorough professional accountant, you want to bring in the best idea in this world alive. So it's very important that you should be a very good risk taker. Okay. Now let's go on this part that how actually to evaluate your personality. This is very important. मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग एक क्विक सी एक्सरसाइज है, आप इसको जरूर कीजिएगा. What you need to do to एक वाइट बोर्ड या किसी भी एक प्लेन पेपर के ऊपर you put a dot and draw a circle around it, or and then from that circle जो point mid point circle है उससे आप लाइंस ड्रॉ करें टुवर्ड्स द फाइनल जो सर्कल बाउंड्री है, और वहां पर आप जो अपनी पर्सनालिटी में जिन पॉइंट्स के और इंग्रेडिएंट्स के को पे इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, start writing those points there. For example, how much the visionary part is important to your personality. So एक line draw करें, उसके end पर you write there visionary, right? How social you are, you write there social. How how good is your self control, जो हम अभी बात कर रहे थे, you are led by reasons not by emotions. Your empathy, the power overall, your power of your thought process, assurance, rationality, your consciousness. So whatever जो हमने अभी या अभी जो हमने बहुत सारे points discuss किए हैं, आप एक बीच में डॉट डालें और उसके इर्द गिर्द आप ये लाइन ड्रॉ करके उनके एंड पर ये लिखना स्टार्ट कर दें. उसके बाद आप मार्क करें जीरो, जो मेन जो न्यूक्लियस सेंटर डॉट है उसको कंसिडर दैट 0, और जो बिल्कुल सर के करीब है उसको कंसिडर दैट 10, और स्टार्ट मार्किंग ऑन पेज दोस पॉइंट्स के आप बेसिकली कहां पर हैं. और उसके बाद आप जब उसको आप मिलाना शुरू करेंगे उन डॉट्स को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी साइड्स आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रांग है. तो ये आप खुद से घर में भी कर सकते हैं. एंड इफ यू स्टिल अगर आपको ये एक्सरसाइज समझना आई हो, तो इट्स वेरी इजी, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस, और अगेन यू कैन आस्क इन द Q&A sessions as well. So evaluate your personality. This is very important, and you can do it anytime at your home. So don't waste your time. Build your personality. It's very important. If you really want to be at very good places in the upcoming time, and you really want to be somewhere from where you can contribute, then it's very important for you that you start working on your personalities. So this is it. Thanks for attending. Now we can have questions. Ji Shahid. Thank you, Asad, for a brief session. I would request all the attendees to share their question in the question box so that we can answer them accordingly. So far, we have been requested by few attendees regarding the presentation slides and recordings. Just to let everyone know that after the session,
When this series of session completes, we will be sharing complete slides and recording with all the attendees accordingly. So we just wait for a few minutes. So okay, we have a question from Muhammad Laik. Laik is mentioning that how to stay calm under pressure and avoid lack of confidence while working. I think it's very important to, जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपकी नॉलेज का होना, वेल इन्फॉर्म्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आप उसके बारे में, आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट के ऊपर, सो इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी फिर इस चीज की होती है कि आपको कोई भी चीज डेविएट नहीं करेगी, यू विल स्टे वेरी सब्जेक्टिव। और कोई भी चीज आप चाहे वो इंटरैक्शन कर रहे हैं, निगोशिएशन कर रहे हैं, या इवन आर्गुमेंट भी अगर कुछ हो रहा है, तो आप यू विल ट्राई टू बी वेरी मच लॉजिकल and you will try to lead the complete conversation through your through reasons, because you are well informed on the subject. So it's very important whether you're going into the interviews while communication, that you try to stay informed and have a good knowledge on the subject where you are working or standing, or in the networking session. For example, if you are out to attend some conference on some particular subject, so before going there, there will be some agenda in front of you. Just go through that agenda once, and after going through that agenda, just try to read something out of it. Or maybe before going there, even going on the Mr. Google up wahan jaakar, so you can check get some good information around that particular subject. So for example, when you are there, और जब आप वहाँ जा कर नेटवर्किंग कर रहे हैं, so आप बहुत ज्यादा रेलेवेंट बात कर रहे होंगे, और लोग भी उससे मुस्तफीद हो रहे होंगे, और आप इमोशनली भी स्टेबल होंगे. So this is very important that you stay well informed. Right. We have a question from Shaban Tariq. Shaban wants to know that how to improve self-confidence. Okay. सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट सेशन में बात की थी, नो योरसेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपने आप को जानें कि आप कौन है एज अ पर्सनालिटी. कौन सी चीजें हैं जो आपको लाइफ में, क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी चीजें आपको लाइफ में ड्राइव करती हैं अच्छे तरीके से. एंड दिस इज समथिंग यू कैन डू थ्रू एन एक्सरसाइज, जिसमें आप यू कैन आस्क सम ऑफ a person or a mentor or your father or a friend who is close to you, or even you can have a set of questions in front of you कि कौन सी चीजें मुझे ज्यादा एक्साइट करती हैं, कौन सी चीजें मुझे ज्यादा ड्राइव करती हैं. सो गेट टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ फर्स्ट, कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से ग्रे एरियाज हैं, कहाँ पर काम करने की जरूरत है. सो व्हेन यू नो दोज एरियाज एंड यू एक्चुअली, और जो फिर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं या जो थॉट प्रोसेस है, फिर आप यू स्टार्ट बिलीविंग इन देम दैट ये थॉट प्रोसेस है, दिस इज व्हाट आई कैन. मैंने एक बीच में बात की थी आप सेशन में अराउंड द बिलीफ सिस्टम, कि स्टार्ट सीइंग योर सिटी अप एट द हिल व्हेन द रॉक्स आर देयर. So it's very important. So self confidence ultimately फिर प्रिवेल करना स्टार्ट कर देता है आपकी पर्सनालिटी में. सो वो आना शुरू कर देता है. तो जो आप सोच रहे हैं या जो आपके एक्शंस हैं, वो ऑब्वियसली जो भी आपके एक्शंस हैं या जो भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, वो किसी थॉट प्रोसेस के थ्रू आ रहा है. सो वो थॉट प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर अपनी ग्रिप करें. जब आपकी उस थॉट प्रोसेस के ऊपर ग्रिप है कि आप लाइफ में जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, and why you are doing it, and what you want to achieve out of it, then ultimately you will have a very strong self-confidence in your personality. Thank you. Okay.
Sobia Mukhtar has requested to repeat the personality evaluation chart. Okay, great. I think वो बिल्कुल मुझे भी अंदाजा था क्योंकि webinar has its own limitations. I'll try to explain in a better way. आप अपने सामने एक पेज लें, वाइट पेज लें और उसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ करें। उस सर्कल के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में आप एक डॉट लगाएं और उस डॉट को लगाने के बाद उस डॉट से शायद इफ यू गिव मी वन मिनट so I can get a page and pen and I can actually tell students how to do it. So can I do it? I think yes, Just you give can. me 10 seconds. Okay, give me 10 seconds. I'm coming back. Meanwhile, Asad comes back. I would request all the attendees. Questions are coming in, but even if someone is having any questions, please share with us. सारे जितने भी जो questions जिनके जहन में हैं, कोई भी clarity आप लोगों को चाहिए regarding the topic, so feel free to ask and take maximum benefit out of this session. Ji, can you hear me, Shahid? Yes, we can. Okay. And you can see this, Shahid, this page? Yes, I hope everyone can Okay, see great. it. Okay, great. So, आपने किया क्या? आपने एक circle draw किया. Okay. I brought this from my daughter actually, and it's not working. Asad, you can just demonstrate. Okay, so here it's the center part. आप इस center part से different lines draw करेंगे, right? और इनके end पे, for example, आप यहाँ पे लिख देते हैं confidence. यहाँ पर आप लिख देते हैं how visionary you are एक line के आगे. हर एक के आगे वो सारे ingredients लिख देते हैं अपनी personality के जो आप evaluate करना चाहते हैं. तो जब आपने लिख दिए तो इस point 0 को जो center है, consider it, rank it 0. और यहाँ से जो लाइन करना है यहाँ तक इट्स 10 और स्टार्ट मार्किंग फॉर एग्जांपल योर कॉन्फिडेंस. आप समझते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है आप इसमें 4 अपने आप को रेट करते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज में आप अपने आप को 8 मार्क्स देते हैं. सो इस तरह से आपने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अपने आप को डिफरेंट नंबर्स दिए. फिर ये जो डॉट्स हैं जो आपने नंबर्स दिए इनको आप मैच करेंगे आपस में और जब आप इनको मैच करेंगे तो एक ये बीच का पोर्शन बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इसको फिर आप कलर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितने स्ट्रांग हैं, आपकी विजन साइड कितनी स्ट्रांग है. तो ओवरऑल एक पर्सनालिटी का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा आपकी जी. And that's how you evaluate you. It's very simple exercise people usually do. I hope I am clear. If not, you can ask or contact us again. And if you are okay, just put a thumb impression or anything in the comment box so that we get. Right, thank you, Asad. Moving on, we have a question from Minahil Iqtidar. Minahil has mentioned that what if you fail again and again, how to remain motivated? हमने पावर ऑफ परसिस्टेंस की बात की थी और अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर बिलीव करने की बात की थी और हमने ये भी उसमें बात की थी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर ऑन द फर्स्ट डे. हमने जितनी भी इंग्रेडिएंट्स पे बात की है फॉर एग्जांपल चाहे वो बॉडी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी वॉइस टोन है, आपका सही कॉन्फिडेंट पोस्चर, कुछ भी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए हैं they are not going to come in your personality after attending this session or after reading some good book around personality या कुछ भी. You need to exercise them within yourself with your actions and you need to make mistakes.
when you will make mistakes with some positivity, that one day with some persistence you will be there. That's why if you see, uh, this is the reason, there can be number of ingredients to your personality, but this was the reason I included this slide, that persistence is very important. If you keep on continuing getting failed in something which you are trying to do, so you will get there by time, or you will get the right answers with time. So it's not a one day exercise. So you need to believe in yourself and keep on moving yourself. Right. Sangar Khan wants to know that how to adopt a habit completely. How to adopt a habit completely. Yes. This is to adopt a habit completely. First of all, first of all, you need to actually know yourself, who you are, number one, and after that, start practicing that within yourself through your actions, through in your daily routine, during conversations. Try to bring that thought process alive through your body language. And this is very important. Until and unless you will not do it, you will not get there. uh, कल भी हमने बात की थी कि when I used to be in school, so our English literature teachers used to say us one very important thing, that if you really want to learn English, then walk in English and talk in English. So you actually bring alive a complete thought process through your body language. So bring in action whatever you believe in. We can share these slides, or just start thinking around the personality aspects in your life and start actually practically doing. Thank you. Right. Question from Adil Bilal regarding eye contact. Adil has mentioned that when there is a panel interview of 3 or 4 person, how to maintain your eye contact and body posture. Okay, great. A very good question. There are moments actually when to look at everyone and when to look at precisely the person who is asking that particular question. और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आई कैन शेयर इट विद यू, एंड इट्स बीन नंबर ऑफ टाइम्स। और ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं होता, बल्कि आप जब किसी नेटवर्किंग कॉन्फ्रेंस सेशन में है और 4 लोगों को से आप बात कर रहे हैं, लेट्स से, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर आपने राइट स्ट्रोक खेलनी है। फॉर एग्जांपल, जब आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर हो रहे थे, रूम में एंटर होने से लेकर उस चेयर पे पर जाकर बैठने तक का सफर ऑफ फ्यू गुड सेकंड्स, इसके अंदर जो आपने जाना है और जाकर आपने ग्रीट करना है, सो यू नीड टू लुक एट एवरीवन। दैट्स द बेस्ट चांस के प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ दैट यू लुक एट एवरीवन, स्माइल, ग्रीट विद अ पॉजिटिव स्माइल ऑन योर फेस, एंड देन सिट, and then start looking at the person who first greet you or ask you that question. And when he's asking you that question, look at that person. When the question is complete, you are answering. For the first few seconds, look at that person. And when you are trying to conclude that answer, just give an easy look to everyone and then come back to the person जिसने वो सवाल पूछा था। उसके बाद इन्होंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, नाउ अब यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन व्हेन ही इज एक्चुअली हैविंग दैट, मतलब वो जब आपसे बात कर रहे हैं, you people are having now a conversation. So from looking at or now you're looking at him, so that he sees that you are a good listener. If you will look at 4 at that time or not there, so he will definitely judge you in this way that maybe you are not focused or not a good listener. So आपने allocate करना है right time पे अपने eye contact को right तरीके से. This is how you do it. Right. Asad, we have an important question from Hiba Farooq. Hiba has mentioned her own experience.
She has mentioned that she was on for a job interview, and during the presentation in front of the HR manager, she went blank and lost that what she was about to speak during the presentation. So in such situation, she has mentioned that how you can handle and bring back your confidence. Very good question. Very good question. Thanks. Thank you for asking this question. ये इसलिए होता है कि हम यूजली समझते हैं कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो तभी अच्छे होते हैं जब हम वी स्पीक वेरी गुड इंग्लिश and we have to completely stay in English during that conversation, और या हम इस sense के साथ जाते हैं that we need to speak English. We literally need to take this part very lightly into our own selves, that it's just a language. और इससे कहीं ज्यादा आपको इंटैक्ट रहना होता है थॉट प्रोसेस के ऊपर कि आप बेसिकली बात क्या कर रहे हैं. यूजुअली ये होता है कि हम जाते हैं ये देखकर कि जो स्लाइड के ऊपर बात लिखी हुई है वो बात उसी तरीके से इसी तरीके से मैंने उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना है. सो बिफोर यू गो इनटू एनी खास तौर पे प्रेजेंटेशंस के अंदर, यू जस्ट हैव अ जनरल आइडिया ऑन जो स्लाइड पे लिखा हुआ है कि इसका खुलासा या जनरल ये क्या बात लिखी हुई है. और इसी वजह, और दूसरी चीज ये है कि आप स्लाइड्स के ऊपर कम लिखते हैं. जब आप स्लाइड्स के ऊपर ज्यादा लिखते हैं, ठीक है, और जब आप स्लाइड्स की तरफ ज्यादा देखते हैं और ऑडियंस की तरफ कम देखते हैं, तो एक वजह तो ये भी होती है कि आप एक खुद से ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्डिंग में भी आपने कहीं से कॉपी पेस्ट की है, वो आपके अपने अल्फाज नहीं है. तो आपकी बेशक जितनी मर्जी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो उसके ऊपर, लेकिन वो आपकी चूंकि बॉडी लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड नहीं है, सो मे बी समवेयर यू लूज इन द मिडल. ये ऐसी ही बात है मिसाल के तौर पर कि मैं अपने किसी दोस्त के साथ, हम चार लोग कहीं पर गुफ्तगू कर रहे थे और अब मैं अपने एक दोस्त की बात को कोट कर रहा हूँ. अब मैं अपने दोस्त की बात को कोट कर सकता हूँ याद रख के अच्छे तरीके से, लेकिन वो जितने मुस्बत तरीके से उसने कही थी, खुद कही थी, और वो खुद से आकर अपने उस नेचुरल कलर के साथ जो एबिलिटी रखेगा वो और होगी. सो ट्राई टू स्टे नेचुरल योरसेल्फ, और जो कंटेंट या पॉइंटर्स आप क्रिएट करें, कोशिश करें कि वो वेल ओरिजिनेटेड और वेल इन सिंक हो आपकी अपनी पर्सनालिटी के साथ. सो ताकि जो भी हो वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह चल रहा हो. वो बिल्कुल ऐसे ना हो कि कहीं पर कुछ स्लाइड्स थी तो वो आपने एज अ मशीन आपने यू आर सिंपली नीड टू ट्रांसलेट दैट. ये जो वरी है ना कि जो स्लाइड पे लिखा हुआ है मैंने उसी को एज इट इज आर्टिकुलेट करना है, दैट किल्स इट. असल में वाइस वर्सा होता है, और वो ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन में मैंने बोलना है, जो मैंने प्रेजेंट करना है, मेरी स्लाइड को उसको बैक करना चाहिए, ताकि मैं पहले बोलूं, मैं बात बात में करूं, और जो मेरी स्लाइड में लिखी हुई जो कंटेंट है वो मेरी बात को बैक कर रहा हो. यानी कि जब आप उस प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो यू आर दैट मच प्रिपेयर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल, जो हमने बात की थी. यू गो विद दैट एंड देन यू विल डिलीवर इट. आप, आई एम 100% श्योर कि एक चीज जिसका ताल्लुक आपके साथ स्ट्रांगली इंटैक्टेड है, और प्राइमरीली प्रेजेंटेशन में आप खुद को पहले रख रहे हैं और कंटेंट को बाद में, तो वो कंटेंट अल्टीमेटली आपके साथ खुद ड्राइव होगा. आई थिंक मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इस पे दिया है. आई एम Thank you, Asad. होपफुल इट विल हेल्प. Tuba Javed has requested to suggest few books on improving our personality. ओके ओके. ये अच्छा, इस पे मैं आपको एक जरा डिफरेंट आंसर दूंगा. मैं आई हैड फ्यू बुक्स इन माय माइंड, और मैं आपको बता भी सकता हूँ. एक एक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, और और एक एक और किताब है
let me get back to you on this. I know a number of books on this, but the point is not this. I want you to understand the bigger picture here, and that is that it's not that you start reading the particular books around personality. Pick up books which actually are close to your thought process. जो भी चीज आप लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप वॉर पसंद करते हैं, आपका वॉर जॉनरा आप सब्जेक्ट पे आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप एडवेंचर से रेलेवेंट कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप मिस्टिसिज्म से रेलेवेंट कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप एडवेंचर कुछ भी है, एनी सब्जेक्ट which is close to your heart, pick that book and start reading that book. वो जो आपकी जो पर्सनालिटी का बिल्डअप करेगा, बेसिकली द पॉइंट इज नॉट टू go into a particular, because the creator has not make us a machine that today there is iPhone 6, tomorrow there is going to be iPhone 7, 8, 9, 10, 11. We are human beings, we are heart centric, we are human centric. So whatever you will read is going to be reflected through your body language and personality, and that's most important. So reading books is important. So when you will read number of books, so जो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नुमाया होकर निखरेगा, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. Right, Asad. Last question of the session. Question from Syed Muttahid Shah. Muttahid has mentioned that how we can maintain a healthy work-life balance. How we can maintain a healthy work life balance. अब हमने एक बात की थी इसके अंदर, यू स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज. अगर हम ये जाए इसमें ट्रू टू योर वैल्यूज. अब वैल्यूज क्या है? वट एवर यू से दैट कि मैं बहुत सेल्फलेस हूँ, मैं किसी भी चीज को लेकर बड़ा जो भी, फॉर एग्जांपल हमने ACCA की वैल्यूज की बात की थी कि ACCA एज ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं इंटेग्रिटी, इंक्लूजन और इनोवेशन. अगर हम रोज ऑफिस में आते हैं और हमें ये वैल्यूज अपने काम के दौरान, इंटरेक्शन के दौरान वो कल्चर में नहीं नजर आती हैं, यानी कि इट्स नॉट देयर व्हाट वी क्लेम एंड इट्स नॉट देयर, then there is going to be a problem or distraction in the balance. Likewise हमारी personalities होती हैं, हम अपनी personalities के अंदर बहुत सी इखलाकी कदरें लेकर जीते हैं उनको. अगर हम उनको लेकर नहीं जीते हैं, then we lose that balance. और where are you working, उस कंपनी की क्या वैल्यूज हैं और आपकी क्या वैल्यूज हैं, और इसके बीच में आप किस तरह से उनको बैलेंस करते हैं और वेल इन सिंक करते हैं, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस. बट इट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि वो वैल्यूज हैं क्या, और वो आप अपनी पर्सनालिटी में उन प्रोफेशनल वैल्यूज को या उन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को भी आप कितना जीते हैं. यानी कि इंटेग्रिटी अगर आपकी कोर वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर, सॉरी जी मैंने विंडो खुली रखी हुई थी शायद, सॉरी, इट्स अ न्यू नॉर्मल सो यू नीड टू बेयर विद मी. सो आप कितना उन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं, इंटेग्रिटी को, और आप कितने इंटेग्रिटी को एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग योर वर्क, आप कितना इनोवेटिव होते हैं जब आप रोज काम पे आते हैं, और जो आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, दैट यू आर अ फैमिली पर्सन, दैट यू आर अ गुड फादर, और यू आर वेरी सेल्फलेस, आप सेल्फलेस डेवलपमेंट पे, उन दोनों का जो सिंक है वो अल्टीमेटली खुद ही एक बैलेंस क्रिएट कर देता है. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोफेशनल साइड की वैल्यूज क्या है और आपकी पर्सनल साइड की वैल्यूज क्या है. यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी एक्चुअली इवन डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो वैल्यूज हैं क्या. जी That's all with the जी question, शायद, Asad. Thank you. Over to you राइट. now. और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग काम. और मैं आई एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेक इस सीरीज के अंदर एक थॉट प्रोसेस के जरिए लेकर चल रहा हूँ. सो हमने स्टार्ट किया था द बिगिनिंग ऑफ एवरी बिगिनिंग से, दैट हाउ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. फिर हमने उसके बाद
vision की बात की, आज हमने personality की बात की, and it's likewise. So we are trying to build few important quotients of success within your personality through proper ladder approach. So I would want you to stay connected with us, stay tuned. There is a lot more coming at your end. Now it's on your end, how better you actually adapt and learn. Thank you very much.